Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I welcome you all in the Google online classes and I hope that you all are fine and good at your home. My dear students, you all knows that we start our lecture with the linkage questions and I hope that you all knows the answer because you are familiar with the topic. Now tell me that what are the major organ system of humans? Yes. Try to give me the answer. Very well done. Yes, your answer must be the major organ system of humans are digestive system, circulatory system, respiratory system, etc. Very well done. Now, my dear students, tell me that what is respiration? Yes, I know that you all knows the answer because it's very simple. Yes, my dear students, a biochemical process in living organisms involving the production of energy from food is called respiration. Very well done. My next question from all of you is, what is a respiratory system? Yes, try to give me the answer. It's very simple. Yes, your answer must be the organ system that helps in respiration is called respiratory system. Very well done. Now, my last and very important question from all of you is, what happens when our respiratory system do not work properly? So what happened? Yes, my dear students, your answer must be when our respiratory system do not work properly, we are suffering from different respiratory diseases like flu, asthma, cough, tuberculosis, pneumonia, etc. So yes, my dear students, in our today's lecture we studied about pneumonia. So students, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पर्सनस में अफेक्टेड बहुत ज़्यादा लोगों में जो पाई जाती है वो हमने पढ़ी थी ट्यूबरक्लोसिस। तो आज हम एक और रिस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो है निमोनिया। ठीक है, जो कॉमनली अभी हमारे सराउंडिंग्स में हमें नज़र आती है। अब ये होती क्या है, किस तरह से होती है, किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द रिस्पिरेटरी डिजीज़ दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. So in our today's lecture we studied about another respiratory disease that we called pneumonia. So how it is spread and how it is caused and how it is prevented. So this is our today's topic. So students, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि निमोनिया क्या है। तो बेसिकली बच्चों ये एक इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन का मतलब आपको पता है कि जब हमारा कोई भी हिस्सा मुतासर हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा जिस पे असर पड़ता है या जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है या मुतासर होता है निमोनिया से, वो है जी लंग्स, आपके फेफड़े। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये वो इन्फेक्शन है जिससे आपके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप निमोनिया को किस तरह से आप उसको डिफ़ाइन करते हो या उसकी तारीफ़ करते हो कि इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, कि ये एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपके फेफड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, या ये आपके फेफड़ों को मुतासर करने वाला मर्ज़ है जिसको आप निमोनिया कहते हैं। ठीक है, सो आपने यहाँ हेडिंग जो है वो बनानी है निमोनिया, और यहाँ पे फिर आपने जो है वो यहाँ सब हेडिंग में लिखना है डेफिनेशन। ये मैं क्या बता रही हूँ, डेफिनेशन। So students, what is pneumonia? Basically it is a respiratory disease, but what is it? Pneumonia is an infection of lungs. Very well done. तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो है अगर उसको निमोनिया होता है तो उसकी वजह से उसके ये देखें लंग्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्टेड होते हैं और खांसने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा आपका इन्फेक्शन भी हो जाता है। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कोई पर्सन है जिसको निमोनिया है तो ये देखें उसके लंग्स किस तरह से इन्फेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम शोइंग इन द पिक्चर द पर्सन दैट इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम निमोनिया एंड you can see here that that his lungs are very much affected due to pneumonia. तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में ये आती है कि
कैसे, वजह क्या बनती है, किस वजह से ये आपको निमोनिया होता है या निमोनिया की क्या कॉजेज़ हैं। तो बेटा जो कॉजेज़ हैं निमोनिया की या वजूहात हैं वो ये हैं कि निमोनिया किस वजह से होता है। निमोनिया जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, यानी कि खुर्दबीनी जानदार या जिन्हें आप आम आँख से नहीं देख सकते उस तरह के जरासीम होते हैं जिनकी मदद से होता है, जिनमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, ठीक है, फंजाई आ जाते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो आपके पास निमोनिया आपको होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप अंडरलाइन या यहाँ हेडिंग बनाएंगे कॉजेस, ठीक है, और किस वजह से कॉज होता है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। तो यहाँ पे आप जो है वो अंडरलाइन कर दें इन वर्ड्स को, ठीक है, जिसमें आ जाता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। आपने इनको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ pneumonia? The pneumonia is caused by bacteria, viruses and fungi. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो बात है कि किस तरीके से ये फैलता है, ठीक है, इसके फैलने की मेन रीज़न क्या है। तो बच्चों जो हमारे पास मेन रीज़न है निमोनिया के फैलने का या स्प्रेड का, वो जो वजह है वो क्या है कि ये हमारे पास हवा के ज़रिए से फैलती है, ठीक है। किसके ज़रिए से फैलती है, हवा के ज़रिए से फैलती है। और यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग ऊपर लिख लेनी है या बना देनी है। तो हेडिंग आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये फैलती कैसे है, ठीक है। तो ये किस तरह से फैलती है, स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है, फैलना। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से जो है उसको लग सकती है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको निमोनिया है तो वो किसी भी हेल्दी या तंदुरुस्त बंदे को ये बीमारी लगा सकता है। किसकी वजह से, हवा की वजह से। जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो उसके लिए आप मास्क क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा जो जिसको कोरोना वायरस है वो खांसता है या सांस लेता है तो उसकी सांस की वजह से या हवा की वजह से वो किसी भी मुतासरा शख्स से जो है वो किसी भी हेल्दी पर्सन को ये बीमारी लग सकती है। तो निमोनिया भी जो है वो ऐसी डिज़ीज़ है कि जो हमारे पास स्प्रेड होती है, यानी कि फैलती है एक जो बंदा है उससे दूसरे बंदे को, ठीक है। और किसके ज़रिए फैलती है, हवा के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से, कि जैसे ही वो बंदा खांसता है या सांस लेता है तो उसके ज़रिए से जरासीम जो है वो दूसरे बंदे को मुंतकिल हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हेडिंग दे दें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये किस तरह से फैलता है, यानी कि कौन सा मोड है इसका, कि जिसकी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो ये किसकी वजह से फैलता है, एयर की वजह से फैलता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से ये लग सकता है। सो व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर स्प्रेड ऑफ निमोनिया, दैट इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर. So dear students, underline the word spread. That means that it is transmitted from one person to another. And how? Through air. अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके अलामात क्या हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं। तो निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को निमोनिया है। तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात। तो सिम्टम्स क्या होती हैं, सबसे पहला सिम्टम्स जो ये है कफ विद म्यूकस, यानी कि उस बंदा जो है उसको एक तो खांसी होगी जिसको निमोनिया होगा, और साथ में खांसी के साथ रेशा जो है आएगा। म्यूकस का मतलब होता है रेशा, ठीक है। तो यानी कि जिस बंदे को निमोनिया होता है उसका कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं, अलामात होती हैं। तो पहली अलामात में से जो पहली कॉमन जो अलामत है वो ये है कि जिस बंदे को निमोनिया होगा जब वो खांसेगा तो एक तो उसको खांसी होगी और खांसी में उसके रेशा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनमें आ जाता है हाई फीवर, यानी कि उस बंदे को जो है जिसको निमोनिया होता है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाएगा, ठीक है, बुखार होगा उसे। इसके अलावा स्वीयर चेस्ट पेन, यानी कि उसकी छाती जो है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और फास्ट ब्रीथिंग, और वो सांस बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ जो है उसकी ब्रीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ निशानियां हैं जिस बंदे को निमोनिया हो। So students, what are the symptoms of pneumonia? That include cough with mucus, high fever, severe chest pain and fast breathing. So students, underline the word here, that is cough, mucus. Underline the word high fever, severe chest pain and fast breathing. जो हमारे माइंड में आता है तो फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं, तो
के प्रिवेंशन यानी कि कुछ आपको एहतियात करेंगे तो आप इस मर्ज़ से जो है वो बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी जो है वो अवॉइड करनी होगी, छोड़नी होगी। इसके अलावा जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें, टॉयलेट यूज़ करें, तो आपने अपने हाथों को सही तरीके से धोना है ताकि कोई भी जरासीम जो है वो आपके खाने के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके। इसके अलावा जिस पर्सन को निमोनिया है आपने उससे दूर रहना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने वैक्सीनेशन करवा देनी है, यानी वैक्सीन जो होती है वो जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो वो फिर फ़ाइट करती है और वो आपको जो है वो इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है और आपको ये मर्ज़ जो है वो नहीं होने देती। तो आप जो है वो वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन वो अमल है कि अगर आपको निमोनिया नहीं भी हुआ हो तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कि आपको निमोनिया ना हो, क्योंकि जैसे ही आप वैक्सीन जब आपको लगती है आपके ब्लड के अंदर जब ये जाती है तो फिर आपके खून के अंदर इतनी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो जाती है कि आसानी से आप इसके निमोनिया के जर्म्स के साथ फ़ाइट कर सकते हैं और आपको फिर ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती। तो प्रिवेंशंस का मतलब होता है किस तरह से बचा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रिवेंशंस फॉर निमोनिया? द निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग, washing hand after use of toilet, keep away from people who are suffering from pneumonia, and through vaccination. So dear students, underline and make heading prevention. Underline the word avoid smoking, washing hand after using toilet, keep away from people who are suffering from pneumonia, and through vaccination. ये तो मैंने आपको प्रिवेंशंस तब होती हैं कि जब आपको मतलब निमोनिया से बचाव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंशंस। डिफरेंट प्रिवेंशंस जो हैं वो अपनी डेली यूज़ में लाएं तो आपको निमोनिया नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको हो गया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है या इलाज क्या है, तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपको जो है वो रिकमेंड करेंगे डॉक्टर, जो कि आपने यूज़ करनी है जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया? दैट द एंटीबायोटिक्स आर used to treat pneumonia. So, and write the heading over here, treatment, and then underline the word antibiotic are used to treat pneumonia. Now dear students, I sum up my lecture. In our today's lecture, we studied about the respiratory disease, that is pneumonia. So what is the pneumonia? It is a infection that during this infection our lungs are affected, or it is an infection of lungs. Okay, so what is the definition of pneumonia? That it is the infection of lungs. And what are the causes of pneumonia? That pneumonias are caused by microorganisms, and what are their names? Bacteria, fungi, and viruses. And what are the different modes of transmission? Are the spread of pneumonia. The spread of pneumonia includes that it is spread from one person to another person. And how it transmits from one person to another person? Through air. So what are the different symptoms of the of pneumonia? The symptoms of pneumonia include cough with mucus, high fever, severe chest pain, and fast breathing. And how we get prevented from pneumonia? We get prevented from pneumonia by avoid smoking, by washing our hand after using toilet, by keeping away ourselves from the person that are already suffering from pneumonia, and the last and very important prevention is vaccination. And what is the treatment for pneumonia? The treatment of pneumonia are the use of antibiotics. By the use of antibiotics, you can treat this disease. Dear students, coming towards your homework, आप अपने बुक के पेज नंबर 112 को स्टडी करेंगे तो आप इजीली इन ब्रेक्स को जो हैं या इन ये जो मैंने वर्ड्स को ये जो मिसिंग वर्ड्स हैं या ये जो ब्लैंक्स हैं उनको आप इजीली फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, के निमोनिया की क्या अलामात हैं। सो योर आंसर मस्ट बी सिम्टम ऑफ निमोनिया कफ विद म्यूकस, हाई फीवर, सिवियर चेस्ट पेन एंड फास्ट ब्रीथिंग। तो आपने फुल पेपर प्रेजेंटेशन के साथ इस वर्कशीट को जो है वो आपने अच्छे से फिलअप करना है। और फिर आपने जितनी भी वर्कशीट्स आपके पास साइंस की हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा स्टेपल करके फिर जिस दिन हम आपसे कहेंगे उस दिन आपने इनको स्कूल भिजवा देना है।
स्टूडेंट्स, आपने ये मदरजा झेल आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, इन पे अमल करना है। सो ऑनलाइन क्लासेस से मुतल्लिका तमाम मज़ामीन का होमवर्क आप वर्कशीट्स पर करना है। जिन बच्चों ने होमवर्क जमा करवा कर वर्कशीट्स अभी तक स्कूल से मौसूल नहीं की हैं, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल स्कूल से ले आएँ। और अब आपने होमवर्क जो है वो हमारे साथ करना है, और कहाँ करना है, वर्कशीट्स पे करना है। शशम और हफ्तम सवालात ब्लैक पॉइंटर से और जवाबात पेंसिल से, और अहम जो जितने भी नुकात या पॉइंट्स हैं वो ब्लू पॉइंटर से लिखेंगे। हजतम और नहम वाले जो हैं वो सवालात ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे और जवाबात ब्लू पेन से लिखेंगे और हेडिंग मार्कर से देंगे। होमवर्क बहुत नीट और क्लीन पेपर प्रेजेंटेशन के साथ आपने करना है। इस होमवर्क को मंथली टेस्ट पे कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके 30% नंबर होंगे जो कि आपके फर्स्ट टर्म के रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द नूर के पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और किसी भी असिस्टेंट के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।